Hello students and welcome to the third lecture of trigonometric equation. In the last class we discussed few important formula and discussed some problem as well. Let us quickly revise that formula and the formulas first. कि हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूला हैं. अगर sin x इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू n पाई. ओके हर केस में n बिलोंग्स टू z होता है. इफ cos x इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2. यहाँ पे n बिलोंग्स टू z. इफ tan of x इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू also n pi where this n is belongs to z. Then if here this is basic three formula, then there are if sin x is equals to sin alpha, if sin x is equals to sin alpha, then your x is equals to n pi plus minus 1 to the power n alpha. If cos x is equals to cos alpha, then x is equals to 2n pi plus minus alpha. If tan of x is equals to tan alpha, then x is equals to n pi plus alpha. Then there are another three formulas there. If sin square x is equals to sin square alpha, then x is equals to n pi plus or minus alpha. If cos square x is equals to cos square alpha, then x is equals to n pi plus minus alpha again. And if tan square x is equals to tan square alpha, then x is equals to again this n pi plus minus alpha. In all the cases, my dear students, n is belongs to z. N is belongs to z. And if question in the form of a cos x plus b sin x is equal to c, if question is in the form of a cos x plus b sin x is equal to c, then just put a is equals to r cos phi and b is equals to r sin phi. Okay, you can reverse also where this r is equals to under root of a square plus b square, and basically phi is equals to tan inverse b by a, which means tan phi is equals to b by a. Or we can say sin phi is equals to b by under root of a square plus b square, and the cos phi is equals to a by under root of a square plus b square. यहाँ देखो ये b by है ना, एक साइड को तुम b लोगे, एक साइड को a लोगे, तो और तीसरा साइड आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट आएगा. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. बस इतना ही है इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. इतना याद हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझो बहुत ही इजी है. बाकी सब सिंप्लीफिकेशन, छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशंस है. ओके, इसको तो पहले से तो नोट किए होगे, ठीक है. थोड़ा सा रिवाइज कर दो. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स दैट आर मेंशन ऑन योर बोर्ड. The first question on the board is tan x plus tan 2x plus tan 3x, tan x tan 2x plus tan x into tan 2x is equals to 1. तो इसमें सब लिखा है सॉल्व. सॉल्व मीन्स we have to find the values of x.
we have to find the value of x means we have to find the general solution in each cases. So we can write this is 10x plus 10 2x is equals to 1 minus 10x times 10 2x. उसको लेफ्ट साइड ले गए, राइट साइड ले गए, तो अभी ये हो जाएगा 10x प्लस 10 2x, इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x इंटू 10 2x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड हुआ तो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना है 1. So now we can write this is the formula for 10a plus b. This is the formula for 10a plus b. 10a plus b का formula 10a plus 10b by 1 minus 10a 10b. So we can write this is 10x plus 3x plus 2x is equals to 1, which is nothing but 10 3x is equals to 1. 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4. हमेशा इसी टॉपिक में जो थीटा की वैल्यूज हमेशा रेडियन में लिखना, डिग्री डोंट राइट इन डिग्री. ओके, तो 10 3x इक्वल टू 10 पाई बाय 4. तो 10x इक्वल टू 10 अल्फा होता है तो क्या होता है x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा. सो 3x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4. So we can write x is equals to 1/3 of this n pi plus pi by 4, and this is your answer. This is your answer, my dear students. Okay. Then now moving on to question number 2. Question number 2 बोला है कि question 10x plus 10 2x plus 10 3x is equals to 10x times 10 2x times 10 3x. तो यहाँ से तुम्हें एक बात याद होना चाहिए, the thing that should strike in your mind that you have studied the trigonometric equation. If 10a plus 10b plus 10c is equals to 0, sorry, if equals to 10a into 10b into 10c, then your a plus b plus c must be pi or 180 degree, or in fact 10a plus b plus c must be 10 of a plus b plus c is equal to 10 pi, that is 0. So we can write the 10, ये फॉर्मूला बाकायदा आप लिखना है. उसके बाद हम ये दिस मीन्स a प्लस, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 2x प्लस 3x जो है इज इक्वल्स टू कितना होगा, ऑब्वियसली पाई होगा. पाई इनफैक्ट दिस इज n पाई होना चाहिए. ओके, n ओके पाई लिखो, देन हम देखते हैं. सो ऑब्वियसली 10 जो x प्लस 2x प्लस 3x 6x इज इक्वल्स टू 10 6x इज इक्वल टू 10 पाई मीन्स 0. तो 6x इज इक्वल्स टू n पाई होगा, क्योंकि 10x अगर 0 है तो x इज इक्वल टू n पाई, और x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 6. ये आपका आंसर है. देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में छोटा छोटा ट्रिक छुपा है. इट इज़ वेरी इजी. सो ये 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल 10a 10b 10c के फॉर्म में है. इसका मतलब a प्लस b प्लस c पाई, और 10 ऑफ दिस होल 3 थिंग्स इज इक्वल्स टू 0. 10 of that thing, that 10 of this x plus 2x plus 3x is equals to 0. So 10 of 6x is equals to 0. So note कर लो इसको. Now moving on to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3, 4 cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इज इक्वल्स टू 1 है.
ओके 2x को छोड़ दो पहले, हम इसको लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 तो 2 cos 2x इंटू 2 cos x इंटू cos 3x इज इक्वल्स टू 0। इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखो तो 4 है कि नहीं हमारे पास, इस 4 को लिखे 2 इंटू 2 और यहाँ है cos x cos 2x cos 3x। देखो cos x cos 2x cos 3x सब कुछ लिखा गया है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया गया है इसको हमारी हम सॉल्व करने के लिए, टू मेक इट इजी जस्ट रीअरेंजमेंट दिस। उसके बाद ये 2 cos 2x तो बाहर है और इसको हम लिखेंगे 2 cos a cos b। 2 cos a cos b इज इक्वल्स टू नथिंग बट cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b plus cos a minus b। So we can write this cos a plus b, so x plus 3x is your 4x plus cos a minus b, cos x minus 3x is minus 2x and that is equals to 0 और that is equals to 1 है, sorry this is equals to 1 है। So 2 cos 2x into this is cos 4x and cos of minus theta is nothing but cos theta। So we can write this is only cos 2x is equals to 1। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x cos 4x ओके प्लस 2 cos स्क्वायर 2x, इस 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 1 सॉरी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पहले cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे। cos 2 थीटा का 4 ठो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का और एक फॉर्मूला दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको ध्यान रखो, ये लिखा है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, सो दिस इज नथिंग बट cos 4x का फॉर्मूला है ये, ठीक है। 2x की जगह में थीटा इज्यूम करो, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा। सो वी कैन राइट दिस इज 2 cos 2x cos 4x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आपको? देन हम कितना कॉमन जा रहा है यहाँ अभी, cos 4x कॉमन जाएगा तो ये होगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो ठो केस बनेगा, द फर्स्ट वन इज cos 4x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos 4x अगर 0 हुआ तो 4x कितना होगा, 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 8। ये आपका एक आंसर है, बट दिस n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। और एक केस में 2 cos 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1 और cos 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 और cos 2x को माइनस 1/2 को कितना लिख सकते हैं, cos हाफ कहाँ होता है, बेसिकली हाफ होता है 2 पाई/3 में 120 डिग्री में। सो वी कैन राइट cos 2 पाई/3। सो 2x इज इक्वल्स टू बेसिकली फॉर्मूला है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। 2 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 2 तो कॉमन जाएगा, 2 डिवाइड होगा तो ये 2 कैंसिल प्लस माइनस पाई/3। सो दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। सो n पाई प्लस माइनस पाई/3 आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इस स्टेप को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई/3। यहाँ पे 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया। तो इसके बाद यही स्टेप है
कि x इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये वाला स्टेप देखो, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो इसका फाइनल आंसर है, लेट मी राइट द फाइनल आंसर हियर। तो x इज इक्वल्स टू, फर्स्ट केस में 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8, और x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। Then moving on to question number 4. Question number 4 है 3 cos square theta, 3 cos square theta minus 2 root 3 sin theta cos theta minus 3 sin square theta minus 3 sin square theta is equals to 0. minus 3 sin square theta is equals to 0. So यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट है 3 इंटू 3 मतलब 9 हो रहा है। इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 9 होगा और सम माइनस 2 रूट 3 होगा। तो ये दिख रहा है 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 प्लस 3। तो इसको ब्रेक करो 3 cos स्क्वायर थीटा, ये होगा माइनस 3 रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो कॉमन कितना जा रहा है अभी? ये कॉमन इज 3 कॉस थीटा, और 3 कॉस थीटा कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा माइनस रूट 3 साइन थीटा। ओके, यहाँ पे ऐसे कॉमन अगर जाएगा रूट 3 साइन थीटा, रूट 3 साइन थीटा को कॉमन लेने से यहाँ बचेगा कॉस थीटा माइनस अगेन ये रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। So we can write this is 3 cos theta plus root 3 sin theta into cos theta minus root 3 sin theta is equals to 0। तो यहाँ पे दो ठो केस बनता है। The first either this is equals to 0 or this term is equals to 0। So 3 cos theta plus root 3 sin theta is equals to 0 और cos थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या होगा? वी कैन राइट 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 साइन थीटा, और वी हैव cos इधर गया, माइनस रूट 3 को इधर लाएंगे तो ये tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 बाय माइनस रूट 3 बाय माइनस मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3। माइनस रूट 3 को हम लिख सकते हैं tan होता है माइनस पाई बाई 3, माइनस 60 डिग्री माइनस रूट 3 होता है। सो अभी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में है, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। So theta is equals to n pi plus minus pi by 3, और this is theta is equals to n pi minus pi by 3, n pi minus pi by 3। Here your n is belongs to z। The second case is हम लिख सकते हैं कि cos theta is equals to root 3 sin theta।
कॉस थीटा उधर, साइन थीटा इधर, तो ये 1/√3 कॉस थीटा उधर, √3 इधर, इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और वी कैन राइट टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 इक्वल टू 1/√3 मतलब π/6, 30 डिग्री। सो टेन थीटा इज इक्वल अगर टेन अल्फा हुआ तो थीटा बराबर कितना होता है n π प्लस अल्फा। सो थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस π/6, ये आपका आंसर है, n बिलोंग्स टू z। तो फाइनल आंसर इज थीटा इज इक्वल्स टू n π माइनस π/3 और n π प्लस π/6। दिस इज योर आंसर where your n is belongs to z। समझ में आया कि नहीं? गॉट इट? बस नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है tan² x प्लस cot² x इक्वल्स टू 2। tan² x प्लस cot² x इज इक्वल्स टू 2। तो ये होगा आपका tan² x। cot² x तो हमारी जिंदगी में नहीं है, फॉर्मूला में सब साइन cos tan है, तो इसको बना देंगे tan बाय tan² x इज इक्वल्स टू हो गया आपका 2। तो टोटल हो गया आपका tan4 x प्लस 1 बाय tan² x इज इक्वल्स टू 2। सो इट इज नथिंग बट tan4 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 tan² x। सिंपल है, एलसीएम गया tan² x, एलसीएम जाएगा tan² x, तो tan² इंटू tan² tan4 x प्लस 1 बाई tan² x इज इक्वल्स टू 2 है। तो ऑब्वियसली आपका tan4 x प्लस 1 माइनस 2 tan² x इज इक्वल्स टू 0 है। इसको ध्यान से देखो तो वी कैन राइट दिस 10⁴ का ये tan² x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू tan² x इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको ध्यान से देखो, tan4 x मतलब ये tan² का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 इंटू tan² इंटू 1 मतलब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, पर a इज योर tan² x। a क्या है आपका tan² x और b क्या है 1। सो इट इज tan² x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। व्हाट डज इट इम्प्लाइज? tan² x इज इक्वल्स टू 1, tan² x इज इक्वल्स टू 1, और वी कैन राइट दिस tan² of x इज इक्वल्स टू tan² of π/4, π/4 मतलब tan 45 1 होता है, tan² 45 भी 1 होगा। सो फॉर्मूला है आपका एक tan² x इज इक्वल्स टू tan² अल्फा, देन x इज इक्वल्स टू n π प्लस माइनस अल्फा, x इज इक्वल्स टू n π प्लस और माइनस अल्फा। तो फॉर्मूला 3 ठो है, देखो देयर आर 3 फॉर्मूला। द फर्स्ट वन इज वो तीनों का सेम है, मतलब 3 ठो का सेम आंसर है। अगर sin² x इज इक्वल टू sin² अल्फा देन x इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा, एक cos² x इज इक्वल टू cos² अल्फा देन x इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा, एंड if tan² x इज इक्वल टू tan² अल्फा देन आल्सो x इज इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह π/4 है तो हम यहाँ लिखेंगे π/4। हियर इज योर आंसर, हियर इज योर आंसर। और एक तरीके से हम कर सकते हैं इसको, अल्टरनेटिवली
हमेशा अगर देखो ये x प्लस 1/x एक टर्म और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब समझते हो, उसका उल्टा 1 उतना, मतलब tan और cot जैसे tan cot x कितना होता है, tan x का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज इफ इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इफ x ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से बड़ा हुआ तो x प्लस 1/x एक ऐसे टर्म होते हैं जो हमेशा 2 से बड़ा होता है। कौन? x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसलिए हम और एक टर्म इफ x प्लस 1/x मतलब एक टर्म और उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 2 हुआ, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1/x इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसमें मिला के दोनों 2 होगा। तो इसका मतलब देखो ये tan²x ये कितना 1/tan²x, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो दोनों का वैल्यू कितना हो रहा है 2 हो रहा है। उसका मतलब इसका मतलब इसका वैल्यू 1 है, तो आंसर लास्ट में यही आया देखो tan²x माइनस tan²x इज इक्वल्स टू 1। ओके, और 1/tan²x भी 1 होगा, तो वही सेम है tan²x इज इक्वल्स टू 1, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका खत्म। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लो इसको माय स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट इट। Moving on to question number 6, that is sin x plus cos x is equal to √2। sin x plus cos x is equals to √2। ओके, एक बहुत बढ़िया फार्मूला के बारे में हम जिक्र करेंगे, एक फार्मूला के बारे में बताऊंगा आपको। ये उसी टाइप का प्रॉब्लम है, देखो किस टाइप का, लास्ट में जो किए थे हम a cos x प्लस b sin x और a sin x प्लस b cos x। यहाँ जो रेसिप्रोकल जो भी है उससे सिर्फ डिवाइड करना है। रेसिप्रोकल है 1 और 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दोनों का सम है 2 का अंडर रूट √2 से डिवाइड करो, कहानी खत्म है। √2 से डिवाइड करो तो ये 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ये 1/√2 इंटू साइन एक्स cos x एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये। इसको हम देखो इसको लिख सकते हैं cos 45 मतलब π/4, ये sin x, इसको लिख सकते हैं sin π/4 cos x इज इक्वल्स टू 1। चाहे तो हम इसको sin π/4 cos π/4 लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a cos b प्लस cos a sin b किसके फॉर्मूला है? sin a प्लस b। तो sin x प्लस π/4 का फॉर्मूला एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। और sin 1 कब होता है? सो दिस sin x प्लस π/4 इज इक्वल टू sin 90 डिग्री, और रेडियन में बोले तो sin π/2, sin π/2। सो x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा हुआ तो एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू n अल्फा। फॉर्मूला याद है? अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू n अल्फा। तो वी कैन राइट n पाई प्लस -1 टू n π/2। π/4 को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू n π/2 माइनस π/4। ये π/2 और π/4 को ऐड मत कर देना, क्योंकि इसका π/2 का साइन तुम्हें ठीक से पता नहीं है। n इवन होगा तो एक अलग साइन है, n ऑड होगा तो एक डिफरेंट साइन है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मैं भी, अगर n इवन है तो ये
प्लस पाई बाई 2 होगा, तो n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 4। इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, n बिलोंग्स टू z तो लिखना ही है। अगर n ऑड होगा तो ये माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 होता है माइनस 3 पाई बाई 4। सो n पाई माइनस 3 पाई बाई 4 फॉर n इज ऑड। ये ऑप्शनल है, ये भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो आंसर आपकी यही है, दिस इज योर आंसर। x इज इक्वल टू n पाई माइनस n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। सो फॉर्मूला यही है कि यहाँ से हम एक फॉर्मूला फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि आपको जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, वो जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है दैट इज नथिंग बट रूट टू डिवाइड करो, रूट टू इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की फॉर्मूला। और एक तरीके से हम कर सकते हैं रूट टू टाइम्स कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4, कोई बात नहीं, ठीक है। रूट टू टाइम्स कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4, ये दोनों सेम है, इज इक्वल्स टू रूट टू टाइम्स कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 भी होगा, और रूट टू टाइम्स साइन, ये फॉर्मूला भी तुम नोट कर लो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होता है रूट टू इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 और रूट टू इंटू कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4। दोनों को एक्सपांड करके चेक करो तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही आएगा, दोनों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। इसको तो देख लिए हैं, इसको ध्यान से देखो, ये कॉस एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 4 है, तो cos x इंटू कॉस पाई बाई 4 दैट इज 1 बाई रूट 2, ये sin x इंटू साइन पाई बाई 4 दैट इज 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 कॉमन को रूट कैंसिल, और बीच में प्लस साइन, एक में फर्स्ट में sin x है देन फर्स्ट में cos x है देन sin x है, ओके, cos x प्लस sin x नो प्रॉब्लम, ओके। और एक फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं अगर sin x माइनस cos x की, यहाँ से भी रूट 2 कॉमन ले जाओगे तो ये 1 बाई रूट 2 होगा, ओके, 1 बाई रूट 2 होगा, तो ये साइन x माइनस पाई बाई 4 होगा, x माइनस पाई बाई 4, और इज इक्वल्स टू कॉस के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो रूट 2 कॉस, फर्स्ट तुम्हारा पहला टर्म साइन वाला टर्म है, उसके बाद कॉस वाला टर्म है, तो माइनस रूट 2 इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4 होगा, माइनस साइन एक होगा आउटसाइड द कॉस, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी तुम नोट कर सकते हो, ओके। ये तुम्हारे काउंसिल में भी, तो काउंसिल में तो हम डिराइव करके कर सकते हो, लेकिन अगर एंट्रेंस में कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस में बहुत हेल्पफुल होगा ये छोटी छोटी बात, अगर तुम पहले से पता है तुम्हें, तो एक स्टेप 2 स्टेप तुम एडवांस में बिना पेन उठाए अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लो तुम, नोट इट डाउन। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल्स टू 5। 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल्स टू 5 है। तो ये सिंपल देखो a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में है, जहां अगर a के कोफिशिएंट 4 है, सॉरी x a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3 है, तुम इसी तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हम बस डिवाइड करेंगे, तो a इज इक्वल टू यहाँ 4 है, b इज इक्वल टू 3 है, तो जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट है और 25 का अंडर रूट दैट इज 5, तो 5 डिवाइड करो एवरी साइड,
तो ये 3/5 साइन एक्स प्लस 4/5 कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1 है। ओके, 3/5 साइन एक्स प्लस 4/5 कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1। अभी 3/5 को ओके लेट दिस 3/5 इज इक्वल्स टू कोई भी साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी चाहो ले लो। सपोज हम साइन 5 बोल देते हैं 3/5 को। अगर साइन 5 बराबर 3/5 हो गया तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया 3, ये हो गया 5, सो P/S 3/5, तो B कितना होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर ऑब्वियसली 16 का रूट ओवर 4 है। इफ साइन 5 इज इक्वल टू 3/5 होगा देन हमारा cos 5 वुड बी 4/5। अगर इसको हमें साइन 5 लिखना है तो ये ऑटोमेटिकली cos 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स साइन 5 साइन x प्लस cos 5 cos x इज इक्वल्स टू 1। ये cos A cos B प्लस साइन A साइन B किसकी फॉर्मूला है? ये होता है cos A माइनस B की फॉर्मूला। तो cos x माइनस 5 की फॉर्मूला एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो cos x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1, मतलब हम लिख सकते हैं cos π/2 cos π/2। देन cos x इज इक्वल टू अगर cos अल्फा होगा देन वो x की वैल्यू कितना होगा? x की वैल्यू होता है cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। कितना होता है 2nπ प्लस माइनस अल्फा। सो वी कैन राइट माय स्टूडेंट x माइनस 5, x की जगह x माइनस 5 है इज इक्वल टू 2nπ प्लस और माइनस π/2 और x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 5, सॉरी प्लस 5, ओनली प्लस 5। और 5 की जगह हम लिखेंगे इसको साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हो और कॉस इनवर्स 4/5 लिख सकते हो और टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हो। तुम कुछ भी एक टर्म हम लिख देंगे। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ओके, क्योंकि साइन 5 जो है वो 3/5 है तो 5 बराबर साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। नोट कर लो इसको। ओके, नोट इट डाउन। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नोट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन है यहाँ सेकेंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू 10x। सेकेंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू योर 10x। ओके, तो सिंपली सेकेंड एक्स माइनस 1/10x इज इक्वल टू √2 माइनस 1 है। सेकेंड एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos x, 1/cos x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं sin x बाय cos x इज इक्वल टू √2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा, देखो 1 माइनस cos x ऊपर में बाय cos x और cos x कैंसिल बाय sin x इज इक्वल टू √2 माइनस 1। फिर 1 माइनस cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा। फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो हम लिख सकते हैं इसको 2 साइन स्क्वायर x 2 थीटा है तो थीटा x है तो कितना x/2 साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x/2 cos x/2 इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1, 2 कैंसिल
एक साइन के साथ कैंसिल हो गया और कितना बचा, sin x बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू, दैट इज tan x बाई टू इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1 बचा। देखो थोड़ा सा याद करो, तो √2 माइनस 1 क्या होता है? ओके, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, ये फॉर्मूला तुम पढ़े हो। √2 माइनस 1 क्या होता है? दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री। कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 10 15 डिग्री का, सॉरी 10 22 एंड हाफ डिग्री का वैल्यू होता है। कितना डिग्री का? 10 22 एंड हाफ डिग्री इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1। और इनफैक्ट 10 पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1 होता है। हम चेक कर लेते हैं कि 10 कितना निकालने के लिए 10 √2 माइनस 1 कब होगा? ओके, √2 माइनस 1 होगा। तो 10 15 निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा 10 30। 10 30 तो हमें पता है कि √3 है, 10 30 इज इक्वल्स टू √3 है। तो हाँ, हमें 10 30 डिग्री को 10 30 को पाई बाय 6 लिखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 2 इंटू पाई बाय 12 2 इंटू 10 45 मतलब √2 सॉरी 1 होता है। 10 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। हमें पता है 10 पाई बाय 4 के 2 इंटू पाई बाय 8 इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 10 पाई बाय 8 बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 1। सो 2 10 पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8 है। सबको इधर लाओगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 10 पाई बाई 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको लिखने के लिए हम देखो ये रॉफ है, मैं रफली कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कि 10 पाई बाई 8 √2 माइनस 1 होता है, ठीक है। सो 10 स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 10 पाई बाई 8, ये 10 स्क्वायर है, ये 2 10 पाई बाई 8 है, तो प्लस 1 माइनस 1 करो, प्लस 1 करो माइनस 1 करो, ये ऑलरेडी माइनस 1 है, इक्वल्स टू 0 है। तो दिस इज नथिंग बट 10 पाई बाई 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, दिस इज 2। रूट ओवर उधर जाएगा, यहाँ देखो 10 पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस √2 सॉरी माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस √2 हो जाएगा। और 10 पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 प्लस सॉरी ये प्लस 1 है ना यार, ठीक है, √2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन को हमें इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये पाई बाई 8 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो √2 माइनस 1 आपका आंसर है। तो बस हम दिखा दे, ये दिखाना था कि 10 पाई बाई 8 √2 माइनस 1 की वैल्यू है, ये तुम्हारे स्टडी मटेरियल में भी है। सो वी कैन राइट 10x बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 8, 10 पाई बाई 8। Now it is very simple, 10x is equals to 10 alpha, 10x is equal to 10 alpha, तो x is equal to n pi plus alpha, so is equals to x plus x is equals to n pi x by 2 is equals to, x की जगह x by 2 है, so x by 2 equal to n pi plus pi by 8, ये 2 उधर जाएगा तो x is equals to 2n pi plus pi by 4, x is equal to 2n pi
plus pi by 4, where this n is belongs to z, and this is your answer my dear student, this is your answer. क्वेश्चन नंबर 8 खत्म, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अभी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो वो जो सेक्शन किया हूँ बस 10, 22 हाफ वाला, इतना तक जो पहले से किया था वो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यही लिखना है कि वी नो दैट 10 पाई बाई 8 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। सो रूट 2 माइनस 1 की जगह डायरेक्ट 10 पाई बाई 8 लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट 3। सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। सेकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। तो ये होगा 1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3। ये तो हमें ठीक से पता है। 1 प्लस कॉस 2x फॉर्मूलेस हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा इज योर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा इज योर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2 थीटा होता है तो कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस, ये थीटा है ये 2 थीटा है तो ये आधा होगा तो थीटा बाई 2 होगा। कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर बाय कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है। सो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर बाय, इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो एक तो कैंसिल हो गया, ये 2 स्क्वायर है तो ये 2 टू मल्टीप्लाइड है, ये एक के साथ कैंसिल इज इक्वल टू रूट 3 है। तो अभी जो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कुछ ऐसे टर्म कहीं भी मिलेगा तो हमें क्या करना है कॉस थीटा बाई 2 को डिवाइड करना है तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 बाय 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट 3। ओके, ये भी फॉर्मूला के हिसाब से तुम याद रख सकते हो कि cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स इज द फॉर्मूला फॉर 10 पाई बाय 4 प्लस x। 10 पाई बाय 4 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x and it eventually 10 pi by 4 plus x, and this is the formula for 10 pi by 4 x की जगह है थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट 3। रूट 3 को लिखो 10 पाई बाय 3। ओके, 10 पाई बाय 3। देन 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 10 पाई बाई 3 है तो 10 थीटा इज इक्वल 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा होता है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सो वी कैन राइट पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 n पाई प्लस पाई बाई 3 और वी कैन से थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 और वी कैन से थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 12 दैट इज पाई बाई 6 और 2 फिर मल्टीप्लाई करो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 6 इज इक्वल टू दैट इज पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू z
is your answer, my students. That is your answer. Question number 9 complete. Okay, then moving on to our next question. Moving on to our next question, that is question number 10. Question number 10. Question दिया sin 3 theta is equals to cos 2 theta. हमें बहुत सारे वे में कर सकते हैं. एक सिंपल वे से हम ट्राई करते हैं इसको लिखते हैं sin 3 theta माइनस cos 2 theta is equals to 0. तो माइनस में कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं साइन माइनस कॉस का, तो इसको साइन कर देंगे. तो ये साइन 3 थीटा माइनस इसको लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0. सॉरी, साइन, दिस इज साइन कॉस 2 थीटा को साइन पाई बाई 2 माइनस चुनना था, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, या थीटा की जगह 2 थीटा है. अभी साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में हो गया. और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2. तो ये हो जाएगा 2 कॉस 3 थीटा प्लस करो तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बाई 2 साइन माइनस करेंगे तो 3 थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0. तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, 2 कॉस 3 थीटा माइनस 2 थीटा इज थीटा प्लस पाई बाई 2 बाई 2. ये साइन का कितना हुआ 5 थीटा, 5 थीटा माइनस पाई बाई 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे दो टर्म 2 तो जीरो नॉन जीरो है, तो दो पॉसिबल कैसे, आइदर ये 0 होगा नहीं तो ये 0 हो जाएगा. सो कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से इसको, थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं. थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4, यहाँ पे साइन लिख सकते हैं 5 थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 0. तो कॉस इतना 0 हुआ. सो दो केस बनेगा कॉस थीटा बाई 2. तो फर्स्ट केस इज आइदर कॉस थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ बनेगा साइन 5 थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 0. तो फर्स्ट केस में थीटा बाई 2 इज थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉस थीटा 0 होता है, ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है. 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. सो थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4. फिर 2 अगर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो इधर लिख देते हैं 2 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 बेसिकली कैंसिल हो जाएगा. देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा. सो दिस इज थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 2.
ओके 2n+1 पाई माइनस पाई बाई 2, ये रहा आपका आंसर। तो फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या होगा हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू n पाई, ये 5 है। सो 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4, और थीटा इज इक्वल टू 2/5 इंटू दिस n पाई प्लस पाई बाई 4, और दिस n बिलोंग्स टू z, दिस n बिलोंग्स टू ऑल्सो z। कहीं पे अगर हमने नहीं लिखा हूँ तो ये तुम खुद ही लिखना है, n बिलोंग्स टू z है। तो समझ में आया ये। इसका दूसरा वे भी हो सकता है, तुम sin 3 थीटा को ब्रेक करो, cos 2 थीटा को ब्रेक करो, ठीक है। इसका ये वे भी हो सकता है, हम ये मेथड से किए हैं। समझ में आया? ओके। सो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रॉब्लम एंड सम प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ सम क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू वाला प्रॉब्लम है इसमें। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।